Hello, class 11th student. Today again I am going to start chapter 4. Topic is consumer equilibrium in different curve analysis. This is part 3rd. In the previous two video I had told you about difference between indifferent curve analysis and utility analysis. This is related to ordinal approach and it is related to cardinal approach. Ordinal is given by Hicks and cardinal is given by Marshall and ordinal is given by Hicks. Okay student, then we had discussed about assumptions of indifferent curve analysis. Okay sorry, the third point that I had told you about indifferent set and indifferent curve. Okay, so indifferent set is what? Indifferent set related to all combination of two goods that provide equal satisfaction to consumer. Okay, and indifferent curve, it is a graphical representation of indifferent set. Okay, after that I had told you about properties of indifferent curve. In today video we are going to talk about budget set and budget line. Already I had told you about its meaning and slope in second video. Okay, here I am going to explain you about change in budget line. There are two type of change in budget line. First is shift in budget line and second is rotation in budget line, leftward and rightward. So here in this video we are going to discuss about change in budget line, yani two topics here we are going to cover: shift in budget line and rotation in budget line. So this is the topic of this video. Okay student, first of all, for understanding rotation in budget line and shift in budget line, there is requirement of quick revision of budget. What is budget line and what is budget set? Okay, so here is given definition of both. What is budget set? It refers to all consumption bundle that the consumer can buy using his money income at the previous market price. Okay, if you talk about the budget line, so it include all those combination which cost is less than or equal to income. In this way budget set is related this equation, yani mathematical presentation of budget set is this: P1 x1 plus P2 x2 can be equal to money income or can be less than मनी इनकम, यानी जो दो गुड्स हैं उनके ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर या तो आपकी मनी इनकम के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, यानी दिस इज रिलेटेड टू बोथ वेयर एक्सपेंडिचर ऑन बोथ गुड इज इक्वल टू इनकम, and second all those combination that is going to indicate under spending. Okay, on the other hand, if you talk about the budget line, so budget line is only related to those combination in which consumer is going to expend all the money income. Okay, yani it is related to P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. Okay, so a budget line represent the different bundle that consumer can purchase spending his entire income at the given price. So this is the basic difference between the बजट सेट एंड बजट लाइन. देखिए बजट लाइन में कंज्यूमर को अपना पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंड करना होता है, ठीक है, और फिर जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द बजट सेट, तो इसके अंदर जो बजट लाइन वाले सारे इक्वेशंस तो आते ही आते हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग वाले भी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं. ओके, सो लेट वी अंडरस्टैंड इट इन मोर प्रॉपर वे. ओके, suppose I am taking one example. If a consumer is going to have, if consumer income yani Y is equal to 20 rupee, okay, price of X good is equal to 2 rupee, 4 rupee per unit, is 4 rupee per unit, and price of Y is equal to 2 rupee per unit. Okay, now
we are going to talk about first of all those combination that's cost is equal to money income. यानी we are going to discuss about P1 x1 plus P2 x2 is equal to m यानी income. Okay student, एंड P1 x1 यानी एक्सपेंडिचर ऑन x गुड, P2 x2 यानी एक्सपेंडिचर ऑन y गुड. ये इक्वल होना चाहिए किसके, मनी इनकम को. तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस वाले इक्वेशन को डिनोट करते हैं. ओके तो हियर विल बी x गुड, हियर विल बी y गुड. ओके दिस इज कॉम्बिनेशन A. इफ अ कंज्यूमर इज गोइंग टू एक्सपेंड होल अमाउंट ऑन परचेज ऑफ वाई गुड, यानी ही इज़ नथिंग कंज्यूमिंग ऑफ एक्स गुड, यानी वो एक्स का कंजप्शन नहीं कर रहा है, ही इज़ ओनली कंज्यूमिंग वाई गुड. तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई ही कैन परचेज. सो यू नो कंज्यूमर इज हैविंग 20 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वाई इज़ 2 रुपी पर यूनिट, यानी हाउ मच ही कैन परचेज, तो 20 अपॉन 2, यानी ही कैन परचेज 10 यूनिट. तो दिस इज़ योर ए बंडल. ओके नाउ if suppose he want to purchase 1x, so now he have to expend here how much, the price of x is 4 rupee per unit. Okay, the price of x is 4 rupee per unit. Okay, so in this way when he is going to buy 1 unit of x, in this way he is going to expend here 4 rupees. Now he is having how much, 16 rupees. So in this way now he is able to purchase 8 unit. Okay, so in this way his total income expenditure is 20, that is equal to money income, that is equal to money income. Okay, now suppose he consume 2x. Okay, so in this way he is expending 8 rupees here. Now he is having only 12 rupee, क्योंकि 8 रुपीज़ उसने एक्स की परचेस पे एक्सपेंड कर दिया. तो अभी कितना बचा 20 में से, 12 रुपीज़ जो वो वाई के कंजप्शन पे एक्सपेंड कर सकता है. तो नाउ ही कैन परचेज 6 यूनिट. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. ओके इफ़ ही विल परचेज 3, तो इट्स मीन ही इज़ गोइंग टू एक्सपेंड हियर 12 रुपीज़. Okay, he is going to expend here 12 rupees. So now he is having only 6 rupees. So he can purchase 3y. Okay, now when we are moving to next combination, that is E. So when he is going to purchase 4x, यानी कि he is going to expend 4 multiply 4 whole 20 rupees on the purchase of x good, यानी he is going to purchase nothing of y. So these are A, B, C, D, E. These are those combination जहाँ पे expenditure on X good plus expenditure on Y good is exactly equal to money income that is have by consumer. Okay, so ये क्या है, ये आपका बजट लाइन है, ये आपका बजट लाइन वाला कॉम्बिनेशन है जो कि बजट सेट में भी आता है. लेकिन बजट सेट में इसके अलावा अंडर स्पेंडिंग भी आता है, यानी कि जब कंज्यूमर केवल एक एक्स कंज्यूम कर रहा हो, केवल एक वाई कंज्यूम कर रहा हो, या केवल 2x कंज्यूम कर रहा है या 2y कंज्यूम कर रहा है, इस तरह ये कई कॉम्बिनेशंस को दिखाता है. ओके तो इन दिस वे बजट लाइन एंड बजट सेट, इफ़ यू टॉक अबाउट बजट लाइन एंड बजट सेट, तो बजट सेट इंक्लूड P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m. इसके अलावा P1 x1 प्लस P2 x2 इज़ लेस देन m. ये दोनों ही कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होता है. कौन सा, बजट सेट. बजट सेट इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होता है. और ये वाला इस वाले को, यानी कि जहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर मनी के इक्वलेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन. सो दिस वन इज़ रिलेटेड टू बजट लाइन एंड दीज टू रिलेटेड टू बजट सेट. ओके सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंट. ओके now next thing that we had learned in the previous video, that is slope of budget line. And slope of budget line
आर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, एक्चुअली बोथ आर द सेम थिंग। क्यों दोनों सेम थिंग होते हैं? क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बताता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर कितनी वाई की कमोडिटी गिव अप करने को रेडी है, ये क्या बताता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। और वो कितना उसे गिव अप करना पड़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय प्राइस ऑफ बोथ द गुड। दिस इज वाई वी कैन राइट px upon py is equal to del y upon del x. That is why we will write here the slope of budget line or slope of price line, यानी कि slope of budget line and slope of price line both are the same thing. Okay student? और जो बजट लाइन है ये हमेशा कैसा ड्रा होता है, ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है? क्योंकि जब हम बजट लाइन पढ़ते हैं तो उसमें प्राइस पी एक्स और पी वाई क्या होता है, गिवन यानी कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ऐसा एजम्पशंस लेके हम चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ देखो कि व्हेन कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम दिस स्मॉल ए टू ए, okay, so here at small a he is consuming 60 y and how much x he is consuming 0 x. Okay, now when we talk about next point, take the next point, बी ए टू सी, जब कंज्यूमर ए से सी की तरफ मूव कर रहा है तो हाउ मच अमाउंट ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए पॉइंट पे इफ़ यू टॉक अबाउट द ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे वो वाई की कितनी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, 30 वाई कंज्यूम कर रहा है, और एक्स की कितनी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, 15 एक्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक, इफ़ यू टॉक अबाउट द सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे वो वाई की कितनी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, 20, और x की कितनी कंज्यूम कर रहा है, x की वो 20 अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। ओके, यानी कि डेल वाई क्या हुआ, 30 से 20 यानी कि 10। ओके, और x जो 15 था वो क्या हो गया 20, यानी कितने का चेंज आया, 5 का। पहले वो 15x कंज्यूम कर रहा था, अभी वो सी पॉइंट पे कितना x कंज्यूम कर रहा है, 20x कंज्यूम कर रहा है। ओके, और ए पॉइंट पे वो कितना वाई कंज्यूम कर रहा था, 30 वाई कंज्यूम कर रहा था, अभी सी पॉइंट पे कितना वाई कंज्यूम कर रहा है, 20। तो यानी कि 30 से 10 वाई कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 10 माइनस 10 वाई का कितना अमाउंट उसे गिव अप करना पड़ा, 10 वाई उसे गिव अप करना पड़ा। कितने एक्स के लिए, 5 एक्स्ट्रा एक्स कंज्यूम करने के लिए उसे 10 वाई को गिव अप करना पड़ा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट 2। सो यानी कि एक एक्स के लिए उसे कितना वाई गिव अप करना पड़ेगा, 2 वाई गिव अप करना पड़ेगा। तो दिस इज द रेशियो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द पी एक्स एंड पी वाई, तो प्राइस ऑफ एक्स कितना है बेटा, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो है आपका 2 रुपी पर यूनिट, और प्राइस ऑफ वाई कितना है, दैट इज़ 1 रुपी पर यूनिट। अब इस इक्वेशन पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी 2 अपॉन 1, सो अगेन इट विल बी 2। यानी कि क्या है कि जब भी कंज्यूमर एक्स की एक अमाउंट इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसे वाई की कितनी अमाउंट गिव अप करनी पड़ेगी, 2 वाई, उसे 2 वाई गिव अप करना पड़ेगा फॉर गेटिंग 1 एक्स। सो पी एक्स अपॉन पी वाई अगर आप इक्वेशन लेके चल रहे हो तो भी आपको सेम स्टेटमेंट मिलेगा, और अगर आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स लेके चल रहे हो तो भी सेम मिलेगा। यानी कि एक एक्स के लिए उसे कितनी वाई की अमाउंट गिव अप करनी पड़ेगी, ये किससे डिसाइड होता है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के ऊपर। ओके स्टूडेंट, okay, so here it is given, it's mean that the 2 unit of y must be given up to gain 1 unit of good x. So how we can say it, here it is 30 to 20, तो how much decrease, 10 y, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 10 y का डिक्रीज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे वो पहले 15x का कंजप्शन कर रहा था, अभी कितने का कंजप्शन कर रहा है, 20x का, यानी कि प्लस कितना हुआ, 5x।
सो जब इस वाले इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 10y अपॉन 5x, सो यू विल गेट 2, यानी कि 1x के लिए उसे कितना y गिव अप करना होगा, उसे कितना y गिव अप करना होगा, 2y। ओके, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट इक्वेशन वी विल गेट, वी गेट 5 1 so it will be 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, सो यानी कि 1x के लिए उसे कितना गिव अप करना पड़ेगा, 2y गिव अप करना पड़ेगा। आप चाहो तो आप इस इक्वेशन पे भी वैल्यू पुट करोगे और सेम मिलेगा। प्राइस ऑफ x क्या है, यानी गुड वन की प्राइस क्या है, गुड वन की और गुड टू, तो गुड टू यानी y होता है, ये y गुड है आपका और ये आपका गुड x है। तो गुड x की प्राइस क्या है, 2 रुपी है, और गुड y की प्राइस क्या है, 1 है। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको 1x का कंजप्शन बढ़ाना है तो यू हैव टू गिव अप 2y। ओके, तो इन दिस वे द स्लोप ऑफ बजट लाइन and the slope of price line both are the same thing. Okay, so that is why we are able to write this. So I think now you are able to understand what is the difference between budget set and budget line, and why slope of budget line is equal to slope of price line. So I think both the topic now you are able to understand. Okay, next topic is feature of budget line. What feature we find in budget line? The first feature we find कि whenever you draw the budget line, it is always going to be a straight line. Why? Because we are going to expend entire income. What is the definition of budget line? So budget line show all the combination of two goods that consumer purchase by expending his entire income. So this is the condition कि you have to expend your entire income. Because of that, budget line is going to be a straight line. Okay student, next feature that we find, that is slope of budget line depend upon price of both the good. अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, the slope of budget line is equal to the price ratio of two good, यानी कि we can write the slope of budget line is equal to P1 upon P2. Okay, next feature, इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप का मतलब यहाँ पे आप दिखा रहे हो एक्स गुड और यहाँ पे वाई गुड है, एंड दिस इज़ योर बजट लाइन। यानी कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हो, दिस इज़ योर ए पॉइंट एंड दिस इज़ योर बी पॉइंट, तो ए से जब आप बी की तरफ मूव करते हो तो आपको वाई का कंजप्शन जब आप डिक्रीज़ करोगे तभी आप कंजप्शन एक्स का इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि कंजप्शन ऑफ वाई एंड कंजप्शन ऑफ एक्स गुड, ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, नेगेटिवली। अगर आप एक्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई। सो दैट इज़ रिटन हियर, इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन द consumption of one good is followed by decrease in the consumption of another good. Next feature, horizontal intercept, how we get m upon p1 if entire income is spent on good one. Okay, vertical spend intercept we find by using this equation, m upon p2 if entire income is spent upon good 2. Okay, so what is written? So simply, if you draw a budget line, if you draw a budget line, okay, this is your budget line. So how you are going to draw the budget line? Take the previous example that is given in your book. Okay, so here is given ki consumer is having his income is equal to 60 rupees, price of x is equal to 2 rupee per unit and price of y is equal to 1 rupee per unit. यहाँ पे क्या बोल रहा है, हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगी, ठीक, यानी ये प्राइस ऑफ वन गुड है और ये प्राइस ऑफ सेकेंड गुड है। ओके ओके, सो जब इस इक्वेशन पे हम यहाँ पी एक्स कर लो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, ये पी वाई है, ठीक है। सो अभी जब हम इस इंटरसेप्ट, कहाँ पे ये इंटरसेप्ट करेगा, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, m क्या है आपका 60 और प्राइस ऑफ x क्या है 2 रुपी पर यूनिट, यानी कि ही इज़ एबल टू परचेज 30 यूनिट। तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 10, 20, 30। तो ये आपका हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट मिल गया। अब हमको वर्टिकल स्टेप इंटरसेप्ट जानना है तो हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, m अपॉन p
वाई। ओके, तो एम क्या है आपका 60 रुपीज़, प्राइस ऑफ वाई इट इज़ गिवन 1 रुपी पर यूनिट, यानी यू आर एबल टू परचेज 60 वाई। तो यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा 60, 10, 20, हमें लाइन बनानी होगी ना, 30, 40, 50 एंड दिस इज़ योर 60, यानी कि यहाँ इंटरसेप्ट करेगा एंड इन दिस वे यू आर एबल टू गेट द बजट लाइन। ओके, सो हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, तो फॉर हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट you will use m upon px. Okay, or for vertical intercept you are going to use the equation m upon py. Okay, student, now we are in the condition where we are able to understand the basic concept ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बोला था ना आपको कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सो जब आप चेंज इन बजट लाइन की बात करते हो तो इट इज़ ऑलवेज ऑफ टू टाइप। ओके, शिफ्ट इन बजट लाइन, तो बजट लाइन में शिफ्ट जो होता है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। ये किस रीज़न से होता है, जब भी आपकी इनकम में चेंज होगा। ओके, एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब आपका इनकम इंक्रीज करता है। सेकेंड थिंग वी फाइंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ओके स्टूडेंट, और ये कब होगा, जब आपका इनकम डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो यू आर एबल टू परचेज मोर अमाउंट। लाइक इफ़ यू आर हैविंग 10 रुपी, सो यू कैन परचेज 1 यूनिट इफ प्राइस इज 10 रुपी पर यूनिट। इफ आई गिव यू 1 मोर नोट ऑफ 10, तो इट्स मीन यू आर एबल टू परचेज 2 यूनिट। ओके, नाउ रोटेशन, तो रोटेशन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ एनी गुड। Okay, or it is also of two type, rightward rotation, it is due to decrease in price of x or price of y. Leftward rotation, it is due to increase in the price of x, otherwise price of y. So let we understand it in more detailed and proper manner. Okay, so change in budget line, when you going to understand the topic of budget line, so what is the definition of budget line? Budget line show all the combination of two goods that consumer is able to purchase by expending his entire income at given prices of both the good. तो जब ये प्राइस और इनकम, जो दो चीज़ों को हम फिक्स मान के चलते हैं, गिवन मान के चलते हैं एजम्पशंस में, अगर उनको हम चेंज कर दें तो बजट लाइन में चेंज होता है। ठीक है, तो बजट लाइन में 2 रीज़न्स से चेंजेस होते हैं। एक तो इनकम की वजह से क्या होता है, शिफ्ट होता है। ओके, एंड प्राइस ऑफ गुड 1 या प्राइस ऑफ गुड 2 में चेंज होने से क्या होगा, रोटेशन होगा। ओके, so let me understand it. Here is given in your book कि budget line shift forward without changing its slope when income of the consumer increase. जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, इसीलिए जो न्यू बजट लाइन है we will draw rightward. Okay, now budget line shift backward when income is going to decrease, price is going to be constant. Remember it, here it is given. First of all I am going to explain it in my own way. Okay, so shift in budget line, shift in budget line. so पहला है rightward. rightward shift कब होगा आपका, जब इनकम आपका इंक्रीज़ करता है। सपोज़ करो कि आपके पास 20 रुपीज़ थे, ठीक है, और 2 कमोडिटीज़ है, प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपी पर यूनिट है
और प्राइस ऑफ वाई क्या है आपका 1 रुपी पर यूनिट है। तो अगर आप केवल एक्स गुड कंज्यूम कर रहे हो तो हाउ मच यू कैन परचेज 20/2 यानी 10 यूनिट। दैट टाइम यू आर गोइंग टू परचेज नथिंग ऑफ वाई। अब अगर आप पूरा 20 रुपीज़ वाई पे एक्सपेंड करते हो तो हाउ मच यू आर एबल टू कंज्यूम, सो 20/1, so you are able to purchase 20 and nothing of x. So in this way you are able to get 20 and here 10x या 20y. This is your A B बजट लाइन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आपकी इनकम इंक्रीज़ करके 40 रुपीज़ कर दूँ, इनकम को इंक्रीज़ करके 40 रुपीज़ कर दूँ, तो अब क्या है कि आप कितना परचेस कर सकते हो। नई कंडीशन में आप एक्स की क्या हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 यूनिट और वाई की नथिंग होगी। इस केस में यहाँ पे 0 होगा और अगर आप पूरा 40 रुपीज़ वाई पे कंज्यूम एक्सपेंड कर रहे हो तो आप कितना परचेस कर पाओगे 40 वाई, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए आपको 1 रुपी देना है, यानी कि यू आर एबल टू परचेस 40 और इसकी कितनी आप खरीद सकते हो 20। सो नया वाला आपको किधर मिला, राइट वर्ड मिला। नया जो बजट लाइन है वो किधर मिला आपको, राइट वर्ड मिला। तो जब भी राइट वर्ड चेंज होता है ये किस वजह से होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है। ओके स्टूडेंट, सो लेट वी अंडरस्टैंड इट। Here is given this table. This table is very helpful to understand rightward and leftward shift in budget line. यहाँ पे देखो income is 60, price is 2 रुपी पर यूनिट और गुड टू की प्राइस क्या है 1 रुपी पर यूनिट। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड होल अमाउंट ऑन गुड टू यू आर एबल टू परचेज 60 यूनिट। इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज होल अमाउंट expend whole amount on x good तो you are able to purchase 30 unit. Why? Because 60/2 तो 30 and here 60/1 60. Okay, it is your vertical intercept and it is your horizontal intercept. Okay, now अभी आपकी इनकम डबल कर दी जाती है, 60 से 120 कर दी जाती है। तो आप देखो आप पहले से डबल परचेज कर सकते हो। 1 रुपी पर यूनिट है यानी यू आर एबल टू परचेज 120 यूनिट ऑफ गुड 2। ओके, और इफ़ यू टॉक अबाउट द गुड 1, सो what is your income? Your income is now 120 and how much you have to pay for 1 unit 2 रुपी, यानी in this way you are able to purchase 60 unit. So अभी क्या होगा, राइट वर्ड जो नया ड्रा करोगे वो राइट वर्ड होगा। ओके, अगर आपकी इनकम को हाफ कर दिया जाता है यानी कि 30 कर दिया गया तो इस केस में क्या होगा, आपका कंजप्शन भी 50% डिक्रीज आ जाएगा। देखो यहाँ पे गुड 2 की प्राइस क्या है 1 रुपी पर यूनिट, तो एक यूनिट के लिए आप 1 रुपी दे रहे हो यानी कि 30 रुपीज़ में आप 30 गुड 2 परचेस कर सकते हो। गुड 1 की बात करोगे तो प्राइस क्या है 2 रुपी पर यूनिट, आपके पास 30 है और हर एक यूनिट के लिए कितना देना है 2 रुपीज़, यानी यू आर एबल टू परचेज 50 यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखो दैट इज़ योर बेसिक budget line, this AB, when consumer is having 60 rupees. Okay, now consumer income has doubled, so his consumption has also doubled and there is rightward shift, there is rightward shift. Okay, when income increases we find rightward shift, okay, due to increase in income. Now if you talk about EF budget line, तो ये क्या है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी इनकम क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। यहाँ पे देखो जब आपकी इनकम 60 से 30 कर दी गई तो आपकी परचेजिंग पहले से कम हो गई। जिसको आप 60 यूनिट खरीद सकते थे अभी 30 यूनिट परचेस कर रहे हो। आप एक गुड 1 की 30 यूनिट परचेस कर सकते थे, अभी कितनी कर पा रहे हो, केवल 15। सो दिस इज गिवन हियर। ओके, नाउ चेंज इन इनकम। सो यहाँ अगेन सेम चीज़ दिया हुआ है विथ सेपरेट एक्सप्लेनेशन। तो एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड इज गोइंग टू बी अनचेंज। सो काज अ
parallel rightward shift to the budget line from AB to AB1. It means that a consumer now can buy larger quantity of both the good. जैसे कि आपका प्रीवियस केस था, जब आपकी इनकम क्या थी, 60 रुपीज़ थी, ओके, तो आप वाई की कितनी अमाउंट परचेस कर रहे थे, 60, और उस समय एक्स की 0, और एक्स की कितनी कर रहे थे, 30, जब आप पूरा का पूरा पैसा 30 एक्स के कंजप्शन पे कर रहे हो, और वाई की 0. क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, 2 रुपी पर यूनिट है, और वाई आपका क्या है, 1 रुपी पर यूनिट है. अब आपकी इनकम क्या कर दी गई, 120 कर दी गई. आपकी इनकम 60 से इंक्रीज़ करके क्या कर दी गई, 120. तो अभी आप क्या कर सकते हो, वाई की 120 और एक्स की 60, तो यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट होगा. ओके, यहाँ पे देखो, a decrease in the consumption of the consumer when price of both goods is going to be unchanged cause a parallel leftward shift in budget line from AB to A2 B2. Now a consumer can buy a smaller quantity of both the good. यहाँ पे इनकम डबल की गई थी, अभी इनकम को हाफ कर दिया जाए. नाउ y इज़ इक्वल टू 30, तो y का वो कितना परचेस कर पाएगा, 30y, और x का कितना कर पाएगा, 15x. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ x क्या है, 2 रुपी पर यूनिट, और y क्या है, 1 रुपी पर यूनिट. ओके, तो यहाँ पे जब देखो आप 60 था तो वो 60/30 कंज्यूम कर रहा था, और जब 120 हो गया तो 120 और 60 यूज़ करने लगा, और जब इनकम को हाफ कर दिया गया तो 30 और 15. ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. Now, change in price of good one. Now we are going to discuss about rotation in budget line. We are going to discuss about rotation in budget line. So, यहाँ पे क्या कंडीशन है, देयर इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वन. गुड वन यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स गुड. ओके, सो विल मेक द बजट लाइन स्टीपर. अगर प्राइस जो है, प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज कर रही हो और इनकम आपका सेम हो, तो ऐसे में आप पहले से कम कंज्यूम कर पाओगे. यू आर एबल टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ एक्स गुड. हाउ? सपोज करो कि आपके पास कितना था, इनकम आपका 60 है और प्राइस ऑफ एक्स क्या था, 2 रुपी पर यूनिट. तो आप कितनी यूनिट परचेस कर सकते थे, 30x. अगर मैं प्राइस को इंक्रीज़ करके 2 रुपी से क्या कर दूँ, 5 रुपी पर यूनिट कर दूँ, तो अभी कितना अमाउंट आप परचेस कर सकते हो, 12 अमाउंट. आप 12x परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कितना है, 60 रुपीज़. यू आर हैविंग y इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़. आपके पास कितना है पॉकेट में, 60 रुपीज़. अगर आपको हर यूनिट के लिए 2 रुपी पे करना है, तो आपको कितना x मिलेगा, 30x आप परचेस कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. और अगर प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाए, 2 रुपी से 5 रुपी पर यूनिट हो जाए, तो अब आप कितना कंज्यूम कर पाओगे, 12x. सो यानी कि क्या हुआ, पहले से कम कंज्यूम कर सकते हो. यहाँ देखो, आप पहले से कम कंज्यूम कर पा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा. आप देख सकते हो. ठीक है. सो ये AB से AB1 हो जाएगा. पहले वो कितना कंज्यूम कर रहा था, 30, अभी वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है, 12. सो अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा व्हेन प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ओके स्टूडेंट. नाउ B case. Okay, B case is what? If there is a decrease in the price of good too, so there will be a rightward rotation in budget line. Why? If his income is equal to 60 rupees and price of x is what, 2 rupee per unit, यानी he is able to purchase 30x. अगर मैं प्राइस को डिक्रीज़ कर दूँ, प्राइस ऑफ x को डिक्रीज़ करके 1 रुपी पर यूनिट कर दूँ, तो कितना वो कंज्यूम कर सकता है, वो अभी 60x परचेज कर सकता है. यानी कि वो पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है. पहले OB अमाउंट परचेज कर रहा था, अभी प्राइस में डिक्रीज़ होने की वजह से वो कितना अमाउंट परचेज कर सकता है, OB2. ओके.
Why? Because his purchasing power has increased. Okay, now change in the price of good too. So now we are going to discuss about y good when price of x is going to be constant. Okay, so an increase in the price of good 2 will rotate the budget line leftward from ab to a1 b1. Why? Because he is able to buy less of good 2. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सपोज करो कि y इज इक्वल टू 60. ओके स्टूडेंट, अभी सपोज करो कि प्राइस ऑफ y आपका क्या है, 2 रुपी पर यूनिट है. हाउ मच यू आर एबल टू परचेज? यू आर एबल टू परचेज 30y. और अगर मैं प्राइस ऑफ y को इंक्रीज़ करके 4 रुपी पर यूनिट कर दूं, तो अभी आप 5 रुपीज़ पर यूनिट कर दूं, तो अभी आप कितना परचेज कर सकते हो? 12y. यानी कि यू आर एबल टू परचेज लेस ऑफ y गुड. सो पहले आप कितना परचेस कर रहे थे? ओ अमाउंट परचेस कर रहे थे. प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो आप पहले से कम कंज्यूम कर सकते हो. यानी कि आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो? ओ A1 अमाउंट कर पा रहे हो. क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स गुड, जो प्राइस ऑफ एक्स गुड है वो क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका आप पहली के ही तरह कंजप्शन कर रहे हो. ओके स्टूडेंट, नाउ if there is decrease in the price of good too, so it will cause budget line rotate to right from a b to a to b. Why? Because he can buy more of good too. कैसे? चलिए देखते हैं. आपकी इनकम कितनी है? 60 रुपी. ओके, प्राइस ऑफ वाई गुड क्या है? 2 रुपी पर यूनिट. ओके, और प्राइस ऑफ एक्स सपोज क्या है? 1 रुपी पर यूनिट. अब प्राइस ऑफ एक्स जब 2 रुपी है तो ही इज़ एबल टू परचेज 30 वाई. एंड हाउ मच एक्स ही कैन परचेज? 60 एक्स. अगर ये प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका अगेन वो 60 एक्स परचेज कर पाएगा. लेकिन अगर प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज़ करके 1 रुपी पर यूनिट कर दिया जाए तो अभी वो कितना परचेज कर सकता है? 60 एक्स. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे यही है, वो पहले 30 एक्स परचेज कर पा रहा था, अभी वो 60 वाई, पहले वो 30 वाई परचेज कर रहा था, अभी वो कितना परचेज कर सकता है? 60 वाई. अगर वो पूरा का पूरा इनकम कहाँ एक्सपेंड करे? वाई के कंजप्शन पे एक्सपेंड करे और एक्स का 0 रखे. ओके, सो दैट इज गिवन हियर. Okay, so it is from your book. Budget line rotate to right when px or py will fall. Okay, so it will rotate to right. Why? Because consumer is able to purchase more of that good. Okay student, and budget will rotate to left if there is increase in price of x or price of y. Why? Because now consumer is able to purchase less of that good, that price has increased. Okay, so I think you are able to understand what I had told you. Okay, thank you for today.